Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic double fertilization and seed germination in class 10th science. So in our last video we have discussed the function of the different parts of the pistil or different parts of the flower. So the female part of the flower that is known as the pistil, and here the different parts of the pistil is given. So the first part that is known as the stigma. It is the landing platform for the pollen grain because pollen grain land on the stigma. Then the style, that is the tubular part through which the pollen tube passes, and the next is the ovary. So that is the female part, it is known as pistil. Like that, the male part of the flower, that is the stamen, and in the stamen there are the two parts. First, that is the anther, and second, a stalk that is attached to the anther, that is known as filament. And there are the two lobed in the anther, two lobe होंगे anther के अंदर, so it is known as bilobed anther, bilobed anther. And inside the anther there are the pollen sacs. Pollen sacs means जिनके अंदर pollen grain produce होंगे. So inside these pollen sacs the pollen grains are produced like this. So these pollen grains are not the male gamete, these are the male gametophyte. So what is produced inside the anther? The pollen grains. So like this, these are the pollen grains, and these pollen grains are known as male gametophyte. Male gametophyte is the structure which carry the male gamete. पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं होता, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है. सो इट इज द मेल गैमेटोफाइट. एंड द embryo sac here in the ovary, this black color structure is known as embryo sac, and this embryo sac is known as female gametophyte. अब फीमेल गैमेटोफाइट है तो वो क्या कैरी करेगा? फीमेल गैमीट. ओके, so we have to discuss the double fertilization and seed germination. So why we are saying here the double fertilization? Let us understand कि यहाँ पर दो fertilization होंगे. So if there is the two fertilization, then there is the requirement of the two male gametes. So inside the pollen tube there are the two male gametes. So you can see the male gametes. Okay, so let us understand. So what is the pollination? Pollination, that is the transfer of the pollen grain from anther to the stigma of the flower. So that is known as pollination. So pollination transfer the only the pollen grain. After pollination there is the fertilization takes place, means the fusion of the male and the female gamete. फर्टिलाइजेशन हम किसको बोलेंगे? जब मेल गैमीट. सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, द मेल गैमीट that is the sperm and the female gamete that is the egg. So when there is the fusion of the male and the female gamete, then the zygote is formed. What is formed? Zygote. So like this, here in case of plants also there is the fusion of the male and the female gamete, and only the difference is that
In case of sperm, it is motile, it can move, but in case of the pollen grain, the male gamete they transfer with the help of the pollen tube. वहाँ पर जो मेल गैमीट है वो मूव नहीं करते, पोलन ट्यूब की हेल्प से वो ट्रांसफ़र होंगे. तो जैसे यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना है, ऐसे ही प्लांट्स में भी क्या बनेगा, जाइगोट. एंड आफ्टर दैट ह्यूमन बींग्स में जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो. ओके, सो प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जैसे रेडिकल और प्लूमूल जो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो सेम ह्यूमन बींग्स की तरह आप इसको समझ सकते हो, बट देयर इज द सम डिफरेंस. ओके, सो फर्स्टली द पोलन ग्रेन दैट इज ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. देन दिस पोलन ग्रेन have male gamete and there is the requirement of the two male gamete. So here you can see the male gamete and this tube is known as pollen tube. So the male gamete transfer with the help of this pollen tube and enter into the ovule of the ovary. This red color structure, that is the ovule. Now what is the ovule? ओव्यूल एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाता है. जो भी आप सीड देखते हो वो उनको हम बोलते हैं राइपेंड ओव्यूल. मीन्स ओव्यूल राइप होने के बाद सीड में चेंज हो जाता है. तो अगर किसी फ्रूट के अंदर एक ही सीड है तो हम बोलेंगे कि उसमें ओव्यूल भी एक ही रहा होगा. एंड इफ इन एनी फ्रूट देयर आर द मोर देन 1 or 2 seeds, then we can say कि उसकी ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल थे और वो राइप होके क्या बन गए, सीड्स बन गए. ओके, सो दैट इज द ओव्यूल एंड हेयर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओवरी एंड ओवरी हैविंग द ओव्यूल एंड इनसाइड द ओव्यूल embryo sac is present and inside the embryo sac female gamete is present. So male gamete is present inside the pollen grain and female gamete is present inside the embryo sac. So after fertilization, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10th क्लास में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाती है. सो ओवरी दैट चेंज इनटू फ्रूट एंड दैट ओव्यूल दैट चेंज इनटू सीड. जैसे सपोज आपके पास एक मैंगो का फ्रूट है, तो मैंगो के फ्रूट में आप उसके अंदर एक सीड देखते हो, तो जो ये सीड होगा दैट इज द राइपेंड ओव्यूल और जो ये फ्रूट होगा दैट इज ड्यू टू द राइपेंड ओवरी. जो ओवरी है वो किस में चेंज हो गई, फ्रूट में, और ओव्यूल चेंज हो गया किस में, सीड में. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या होगा. सो दीज मेल गैमीट्स, ये मेल गैमीट पोलन ट्यूब की हेल्प से ट्रांसफ़र हो जाएंगे ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर भी एक क्या स्ट्रक्चर है जिसको हम बोल रहे हैं एम्ब्रियो सैक. अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इन सेल्स के क्या नाम होंगे. इन द सेंटर, इन योर एनसीईआरटी इट इज़ नॉट गिवन बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर आपको ये पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ये क्या क्या प्रेजेंट हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाओगे. सो इन द सेंटर, अगर मैं इसको क्या कर लेती हूँ, एनलार्ज, अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को एनलार्ज करके आपको बताऊँ देन यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. इसको मैं मैग्नीफाई कर लेती हूँ. सपोज ये यहाँ पर क्या है, एम्ब्रियो सैक, ये स्ट्रक्चर मैंने इसको मैग्नीफाई कर दिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. सो इन द सेंटर one cell is present and in the side also there are the 2 cells. Here in the center also there are the 2 cells and 3 cells are present here. So now what is their name? So in the center it is the egg or we can say the female gamete. ये क्या है, फीमेल गैमीट. इसके साथ में ये 2 सेल्स हैं,
इन सेल्स को हम नाम देंगे सिनर्जिड, SYNERGIDS, synergids, and these two are the polar nuclei. So in the center polar nuclei and these three are the antipodal cells. So when the pollen tube enter into the embryo sac, तो एक there are the two male gametes. So one male gamete fuse with this egg and one male gamete fuse with this two polar nuclei. तो यहाँ पे एक तो polar nuclei से फ्यूज करेगा और एक एग के साथ फ्यूज करेगा और जो ये सिनर्जिड है इसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर करेगी. ओके, ये गाइड करता है पोलन ट्यूब को एंटर करने में. सो हेयर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट दैट इज नोन एज सिनगैमी. इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं या हम इसको बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन. और यहाँ पे टू पोलर न्यूक्लियाई हैं और एक मेल गैमीट, क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमीट आए थे. तो इस फ्यूजन को हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन. क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन. सो दो फर्टिलाइजेशन हुए यहाँ पे. एक तो हुआ मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन और एक हुआ पोलर न्यूक्लियाई का और दूसरे मेल गैमीट का फ्यूजन. तो अब जब ये दो फ्यूजन हो गए हैं इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? When the syngamy and triple fusion takes place in the embryo sac of the ovule, then it is known as double fertilization. तो अब डबल फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई प्लांट्स में? बिकॉज जो सिनगैमी से तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. उस जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो. तो उस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए कुछ फूड की भी रिक्वायरमेंट होगी. तो वो फूड कैसे बनेगा? वो फूड बनेगा इस ट्रिपल फ्यूजन से. तो ये ट्रिपल फ्यूजन से जो एक टिश्यू बनेगा जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म. सो व्हाट इज एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म दैट इज द रिजर्व फूड ऑफ द एम्ब्रियो. कि जब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो किससे बनेगा? ये जाइगोट बना, जैसे मैंने इसमें ह्यूमन बींग्स में भी बताया. तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो. अब इस एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है और प्लांट्स में वो फूड कहाँ कौन प्रोवाइड करेगा? दिस एंडोस्पर्म. सो दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड द फूड टू दिस ग्रोइंग एम्ब्रियो. ओके, सो हम इसको जैसे तो ये सीड बन जाएगा. दिस ये क्या बनेगा? हमारा एम्ब्रियो. एम्ब्रियो और ये बनेगा एंडोस्पर्म. और सीड किसने बनना है? ओव्यूल ने, क्योंकि ये किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर. तो ओव्यूल के अंदर होगा सीड, मीन्स ओव्यूल ही होगा एक सीड. सीड के अंदर होगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो को भी क्या चाहिए? फूड. और उसके अंदर क्या होगा? एंडोस्पर्म भी होगा. सो दिस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन व्हेन द ट्रिपल फ्यूजन एंड द ट्रिपल फ्यूजन मीन्स द फ्यूजन ऑफ दिस two polar nuclei and the one male gamete, that is the triple fusion. And the syngamy, the fusion of the male and the female gamete, that is known as the syngamy or fertilization. हम syngamy को और fertilization that is the same term. Okay. So let us understand it better कि क्या होगा finally. अब after fertilization यहाँ से क्या बना? जाइगोट. जाइगोट कैसे बना? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल एंड मेल गैमीट. तो इस जाइगोट से फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो. सो ये एम्ब्रियो, अगर हम किसी सीड की बात करें, जैसे मेरे पास ग्राम सीड है, तो उस ग्राम सीड के अंदर इस तरह से एक जैसे स्ट्रक्चर होगा. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ओके, तो ये एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से. और एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या था? रिजर्व फूड. मीन्स इसको जो ग्रो करने के लिए एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट हुई. तो वो एंडोस्पर्म कई बार कुछ सीड्स में वो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो पूरा यूज कर लेता है.
तो बाद में वो सीड बनने के बाद एंडोस्पर्म नहीं रहता, तो उन सीड्स को हम बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. व्हाट आर देयर नेम? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में एग्जाम्पल आते हैं डाइकोट सीड का. डाइकोट सीड मीन्स कि 2 कोटलीडन्स जिनमें होंगे. तो अब ये ग्राम सीड है तो 2 कोटलीडन है, तो हम इसको बोल देंगे डाइकोट सीड. तो इसमें अब एंडोस्पर्म नहीं बचा क्योंकि एम्ब्रियो ने उसको क्या कर लिया? यूज कर लिया. ओके, बट इन केस ऑफ मोनोकोट सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, और उन सीड्स को हम बोल देंगे एंडोस्पर्मिक seeds. So I think you understood the double fertilization, and now we will discuss the seed germination. So what is seed germination? Seed germination means the seed contain the future plant. जो seed होता है उसके अंदर future plant होता है. future plant क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर embryo होता है, और embryo के 2 part होते हैं. One is known as the radical part and second is the plumule. So this radical part, जब ये embryo grow करेगा तो जो radical part है that give rise to root, and the plumule part that give rise to stem. तो radical से क्या निकलेंगी? roots, और plumule से निकलेगा stem. So the seed contain the future plant because it have the embryo, and when seed get the appropriate moisture, then the embryo that give rise to the new plant or the new seedling, and this process is known as seed germination. तो इस process को हम क्या बोलेंगे? seed germination. Here one activity is also present. You can collect the gram seed, जो चना जिसको हम बोलते हैं, या बीन जिसको हम राजमा बोलते हैं. तो अगर आप उसको वाटर के अंदर डिप कर लोगे, सपोज़ यहाँ पर एक बीकर है, तो इस बीकर में आप ग्राम सीड या बीन सीड, अगर हम इसको वाटर के अंदर जो है डिप कर लें, ओवरनाइट छोड़ दें, फिर अगले दिन हम इन सीड्स को निकालेंगे, और धीरे से जब हम इसको ओपन करेंगे तो वी कैन सी the different parts of the embryo and also the embryo inside the seed. So these two are the cotyledons, and that is the embryo. So this activity is also there. You can do this activity at your home. Most of the time your mother use when you are advising or when you are asking for the beans and for the छोले, देन वो आपकी मदर जो है उनको सोक करके रखती है. तो आप भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, अपनी मदर को बोल सकते हो पानी में भिगो के रखने के लिए. फिर उसके बाद धीरे से उसको ओपन करना, देन यू कैन सी द एम्ब्रियो ऑफ द सीड. सीड के अंदर आप एम्ब्रियो देखोगे, और वो एम्ब्रियो कैसे बना था? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द फीमेल एंड द मेल गैमीट. बट एंडोस्पर्म उसमें आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज द ग्राम एंड द बीन दैट इज द डाइकोट सीड, एंड इन डाइकोट सीड में एंडोस्पर्म जो है वो सारा यूज हो जाता है. एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो उसको सारा यूज कर लेता है. ओके, सो दैट इज द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बट मोनोकोट्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, और इस वजह से हम उनको बोल देंगे एंडोस्पर्मिक सीड. सो दैट इज अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड द सीड जर्मिनेशन. सो लेट्स रिवाइज. जो फीमेल पार्ट दैट इज द पिस्टल. पिस्टल हैव द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी. ओवरी दैट इज द फ्यूचर fruit, and inside the ovary ovule is there, and ovule is the future seed. Inside the ovule one structure is present, and that is the embryo sac, and inside the embryo sac there are the different cells. In the center, female germ cell or the female gamete, then these two are the synergids, then two polar nuclei, three antipodal cells.
द फंक्शन ऑफ द एंटीपोडल सेल इज अननोन, ये डीजनरेट हो जाती हैं, इनका कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं है। सो व्हेन द मेल गैमीट, और यहाँ पे मेल गैमीट कितने होंगे 2, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीट नहीं बोलेंगे क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट होता है, पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमीटोफाइट और उसके अंदर होते हैं मेल गैमीट। तो ये मेल गैमीट ट्रांसफर होंगे विद द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब, फिर ये आ जाएंगे यहाँ पे, एक मेल गैमीट फ्यूज होगा किससे, जो हमारा है फीमेल जर्म सेल से, और एक गैमीट फ्यूज होगा इससे 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो इसको हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन एंड दैट इज द सिनगैमी, और ये दोनों चीजें एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रही हैं, सो इस दैट इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन, हम इसको बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो व्हेन द सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल, दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। और फिर वो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट ओव्यूल चेंज इनटू सीड, और उस सीड के अंदर क्या होगा एम्ब्रियो, और जब उस सीड को एक अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसका जो एम्ब्रियो है वो ग्रो करेगा, रेडिकल पार्ट से रूट निकलेगी, प्ल्यूमल पार्ट से स्टेम निकलेगा और एक नया प्लांट बन जाएगा, न्यू सीडलिंग गिव राइज टू फ्रॉम द सीड। सो दैट इज़ अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो, ग्राम सीड, बीन सीड या मूंग दाल, किसी को भी सीड को आप धीरे से ओपन करके और आप उसमें एम्ब्रियो को देख सकते हो। So that is about the double fertilization and seed germination. I hope this topic is clear to you all. So if you like the video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.